तो दोस्तों चलिए आज मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी से। गोदान ये उपन्यास किसको पता नहीं है, और जिसको पता नहीं होगा वो शायद से अच्छा रीडर ही नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद इन्होंने बहुत सारे ऐसे कहानियाँ बुक्स लिखे हैं, उसमें से 8th स्टैंडर्ड के लिए जो स्टोरी आज हम देखने वाले हैं उस स्टोरी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है, और वो स्टोरी का नाम है द ठाकुर्स वेल। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और चलिए देखते हैं इसका अनुवाद इंग्लिश में भी और हिंदी में भी और एनिमेशन। The Thakur's well. Two women had come to draw water, and they were talking. One said, "There they are, eating, and they order us to get more water. There's no money for a jug." The menfolk get jealous if they think we are sitting around, for they think we are taking it easy. That's right, and you'll never see them pick up the pitcher and fetch water themselves. They just order us to get it as though we were slaves. If you are not a slave, what are you? You work for food and clothes, and even to get nothing more than 5 or 6 rupees, you have to snatch it on the sly. What's that if it isn't being a slave? Don't make me feel ashamed, sister. All I do is long for just a second's rest. If I did this much work for somebody else's family, I'd have an easier time, and they might even be grateful. But here you could drop dead from overwork, and they'd just frown. When the two of them had filled their buckets and gone away, Gangi came out from the shadow of the tree and drew close to the well. The idlers had left. The Thakur had shut his door and gone inside to the courtyard to sleep. Gangi took a moment to sigh with relief. On every side, the field was clear. Gangi tiptoed up to the well. Never before had she felt such a sense of triumph. She looped the rope around the bucket. Like some soldier stealing into the enemy's fortress at night, she peered cautiously on every side. If she were caught now, there was not the slightest hope of mercy or leniency. Finally, with a prayer to the gods, she mustered courage and lowered the bucket into the well. Slowly, slowly, it sank into the water. There was not the slightest sound. Gangi pulled it up with all her might to the rim of the well. No strong-armed athlete could have dragged it up more swiftly. She had just stopped to catch it and set it on the wall when suddenly the Thakur's door opened. The jaws of a tiger could not have terrified her more. The rope escaped from her hand. With a crash, the bucket fell into the water, the rope after it, and for a few seconds there were sounds of splashing. Yelling, "Who's there? Who's there?" The Thakur came towards the well, and Gangi jumped up and ran as fast as she could. When she reached home, Jokhu, with the lota at his mouth, was drinking that filthy, stinking water. कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना कहानी। चलिए अब इसी कहानी को हम सुनते हैं एक बार फिर से हिंदी में। जो आपने अभी देखा वो इंग्लिश में था। तो प्रेमचंद जी ने लिखी हुई ये कहानी है द ठाकुर्स वेल। इसका मतलब होता है ठाकुर जी, जो ठाकुर रहता है गांव का साहूकार, उसके यहाँ का कुआं। तो दो औरतें जो है ये यहाँ पे पानी अपना मटका भरने आई है, और वो बोल रही है कि ये जो आदमी लोग हैं ये हमेशा क्या करते हैं, खाना खाने बैठते हैं और हमें बोलते हैं कि ताज़ा ताज़ा पानी लेके आओ। हम क्या नौकर हैं? हम क्या इनके गुलाम हैं? अरे भाई, हम चैन से बैठे हुए इन्हें बिल्कुल दिखता नहीं है। दिन भर हम काम ही करना है। ये मर्द लोग कभी सुधरेंगे नहीं। हम औरतों को ये पैर की जूती ही समझते रहेंगे। दूसरी औरत बोलती है, हाँ हाँ बराबर है। उनको हाथ नहीं दिए हैं क्या? खाली खाने के और धोने के लिए दिए हैं क्या? वो ऐसा नहीं कर सकते मटका खुद लेके जाए यहाँ से भर के लेके? नहीं, उनकी ताकत तो बस औरतों को मारने में, उनको डांटने में ही लगा देते हैं। तो ये औरत उसे बोलती है कि हम क्या गुलाम है क्या? 2 टाइम के खाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है, और 4-5 रुपये अगर इनसे मांग दो तो बस बाप रे, दुनिया भर की बातें हमें सुना देते हैं। ये वो सारी चीज़ें। अरे हम भी, हमारी भी जान है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दूसरी औरत ये सब सुनने के बाद बोलती है, बहन ऐसा मत करो, देखो और पहले ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है और
तुम ऐसी बातें करके मेरे दर्द के ऊपर नमक मत छिड़को। बहुत गंदा लगता है। हम औरतें सच्ची में भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया है, ऐसे ही लगने लग जाता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हमारा घर के काम करते करते अगर हम ये दूसरा काम, दूसरे लोगों का भी काम करना शुरू कर दे तो शायद से पैसे तो मिलेंगे, इनसे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। भगवान न जाने कब हम औरतों को भी अच्छे दिन आएंगे। ऐसा बोलते हुए वो दोनों औरतें अपनी बकेट्स भरती है और रास्ते की अपने घर की ओर निकल जाती है। गंगी जो दलित लड़की है, औरत है, वो अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने आई है, वो लेकिन दलित होने के कारण वो चुप चुप के ले रही है। अब आपको ये हैरानी होगी कि साहूकार जो रहता है उसका ये कुआं है और इस कुएं से कोई दलित औरत ने पानी नहीं लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 लोग पहरेदार रखे थे, वो पहरेदार भी चले गए थे। इसलिए अब गंगी ने दूर से देखा कि यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है और जो साहूकार मतलब ठाकुर है वो भी तो सोने के लिए अपना दरवाज़ा बंद करके चला गया है। वो अपने पैरों का बिना आवाज़ किए हुए चल रही है, घास फूस में से अपनी बकेट निकाल के बिल्कुल बिना आवाज़ किए इधर उधर चारों ओर, जैसे एक सोल्जर्स देखता है वैसे ही उसने देखा और बिना आवाज़ किए अपनी बाल्टी को रस्से से बांध दिया। अब वो फिर से देख रही है कि शायद से कोई पहरेदार तो उसे नहीं देख रहा है। अगर किसी पहरेदार ने गंगी को पकड़ लिया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। दलित औरतों के साथ बहुत बड़ा दुष्कर्म ये लोग करते थे। मार पिटाई तो होती ही थी, लेकिन बता नहीं सकती आपको क्या क्या उनके साथ होता था। सोशल जो सोसाइटी वो टाइम पे जो थी वो बहुत ही गंदी तरीके से इन लोगों को टॉर्चर करती थी। उसने बकेट को कुएं में डाल दिया। अब जब डाल रही थी तो इतनी सलीके से वो डाल रही थी बिना आवाज़ किए, फिर वो उसने पानी भी भर लिया उसमें और अब धीरे 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 उस बाल्टी को ऊपर खींच रही थी। बाल्टी को ऊपर खींचने अभी वो पानी उसको मिलने ही वाला था, तभी ठाकुर की हवेली से लाइट चमकी, दरवाजे का आवाज़ आया और जैसे कि कोई अंदर से बाहर आ रहा है ऐसे उसे लगा। अरे भाई, शेर दिख जाता था तब भी गंगी इतनी डरती नहीं थी उतना उस दिन ठाकुर का दरवाज़ा खुलने से लगा था। अब अंदर से ठाकुर आएगा, ठाकुर के कोई लोग आएंगे, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये सब सोचते ही उसके हाथ में से बाल्टी नीचे फिसल गई और ज़ोर से धड़ाम धुम आवाज़ आ गई, क्योंकि पानी से भरी हुई बाल्टी जब पानी में गिरी, कुएं में गिरी, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। साहूकार ही था ठाकुर। ठाकुर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है, बोलती क्यों नहीं, कौन है। गंगी जोर जोर से भाग के बेचारी पेड़ पौधों के अंदर से घुसती हुई घर पे जा पहुंची। जब घर पे जाके देखा तो उसका जो पति था, जो वो गंदा सा सड़ा हुआ सा जो पानी जिसका स्मेल आ रहा था, वो पानी वो पी रहा था और बेचारी गंगी कुछ ना कर सकी। उसे देखते ही उसे रोना आ रहा था। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 देखते रहिए। धन्यवाद।